پہلے میں آپ کے کچھ سوالات تھے جو بار بار آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو میں اس کا پہلے آپ کو جواب دے دیتی ہوں کہ بہت سی دفعہ آپ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں جو تفسیر بیان کرتی ہوں اس کے میں نوٹس کہاں سے لیتی ہوں. تو الحمدللہ جب میں نے یہ کورس کیا تھا تو جو میرے ڈیفینیٹلی ٹیچرز نے مجھے پڑھایا، میں نے نور القرآن سے پڑھا ہے، تو میں نے وہاں سے ہم نوٹس لیتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جب میرا کورس ختم ہوا، میں دوبارہ سے پڑھانا شروع ہوئی اپنے اسٹوڈنٹ کو. جب میں مسجد میں پڑھا رہی تھی یا اپنے نوٹس تیار کرتی ہوں تو زیادہ تر نوٹس جو ہے وہ میں تفسیر جو ہے ابن کثیر ہے وہاں سے لیتی ہوں، پھر تبیان قرآن سے لیتی ہوں، اور پھر ڈیفینیٹلی اسرار صاحب ہیں، ان کی میرے پاس بکس ہیں، اور تفہیم القرآن ہے. تو ان میں سے ڈفرینٹ میری شروع سے یہ عادت تھی کہ جب بھی میں پہلے بھی جب میں پڑھتی تھی تو میں ایک ہی آیا پہ ڈفرینٹ جو مفسرین ہیں میں یہ دیکھتی تھی کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، تو پھر میں ویسے ہی نوٹس تیار کیا کرتی تھی. اور الحمدللہ ابھی بھی ایوری ویک میری یہ عادت ہے کہ میں جب اپنے نوٹس تیار کر لیتی ہوں تو دین میں اپنے ٹیچر سے جا کے ہمیشہ ڈسکس کرتی ہوں کہ ہر آیت کے کہ اس میں یہ پوائنٹ ہے، اس میں یہ پوائنٹ ہے، اس میں یہ حدیث ہے، اس میں یہ حدیث ہے. تو الحمدللہ اسی طرح سے پھر جب وہ پورا تیار ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا جاتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ پسند کرتے ہیں. سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. آج جمعہ ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو درود شریف کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں سورۃ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 56 میں کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خود کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ حضرت انس کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اس وقت تو بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں آپ لوگ جو بھی پروگرام سن رہے ہیں یہ بعد میں بھی ڈیفینیٹلی سنتے رہیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرائیٹیریا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس پہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جگہ ہے کہ ہم اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے جاننے والے ہر انسان سے زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو تبھی ہم مومن ہوں گے. اور پھر ایک اور حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ پہ کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے رکھوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا تم چاہتے ہو. تو اس نے پھر حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا میں 1/4 حصہ جو ہے اپنی دعا کا وہ میں درود شریف پڑھا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کرو گے، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کر سکو. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اوکے پھر میں ہاف حصہ جو ہے، نصف حصہ جو ہے وہ میں درود شریف پڑھا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کرو گے، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کر سکو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں 2/3 حصہ جو ہے وہ میں درود شریف پڑھا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ اچھا کرو گے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ سکو. تو پھر ابھی جو کعب ہیں، ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا پورا وقت درود شریف پڑھتا رہوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تیرے لیے تیرے دنیا کے جو غم ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے گناہ کے لیے جو بھی تو گناہ کرے گا اس کی بخشش کا باعث بنے گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور اب دیکھیے اسی طرح سے کیونکہ ہم لوگ جب بھی میں آپ یہ اپنا لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں تو کوئی بھی ایسی بات جب آتی ہے، کیونکہ آج جمعہ بھی تھا اور درود شریف ہم لوگ بہت زیادہ بھی پڑھتے ہیں، ویسے تو ہر روز ہی پڑھتے ہیں،
लेकिन एक जुम्मे की वजह से थोड़ा सा और भी ज़हन में आता है कि हमें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपको हदीस शेयर करती हूँ। जब भी हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं तो फिर हमें शौक भी ज़्यादा आता है, फिर हम इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कॉल। अभी हम हदीस का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें मिशकातुल मसाबी में मैं कुछ वज़ू के बारे में पढ़ी थी। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल क्योंकि वज़ू एक ऐसी चीज़ है कि स्पेशली जब हम जॉब पे होते हैं तो हमें ये होता है कि उस वक्त वज़ू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कभी शादियों पे गए होते हैं तो उस वक्त भी हमें लगता है कि पूरा तैयार होते हैं, मेकअप किया होता है, तो वज़ू मुश्किल होता है। और आपने अक्सर ये भी बात सुनी होगी, तो लोग कहते हैं अगर वज़ू ना करना होता ना तो मैं फिर पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ती। लेकिन क्योंकि जब हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की अहमियत को बताया, तो फिर हमारा ये दिल होता है कि नहीं कुछ भी हो हमने वज़ू तो करना ही करना है, क्योंकि इतना अजर उसका। क्योंकि अबू हुरैरा कहते हैं कि जब कोई मोमिन बंदा वज़ू करता है और जब वो अपना चेहरा धोता है, सबसे पहले ना अपना चेहरा जब वो धोता है तो उसकी सारे वो गुनाह जो उसकी आंख ने किए होते हैं वो सारे धुल जाते हैं उसके साथ। जब वो अपने हाथ धोता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके हाथों के सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब वो अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव के सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। माशाल्लाह। देखिए, और फिर हजरत उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू करने के बाद जब कोई ये दुआ पढ़ता है, सेकंड जो कलमा है ना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कई रवायात में ये आता है कि अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन व अजअलनी मिनल मुततहहिरीन। तो जब ये पढ़ता है तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे द डे ऑफ जजमेंट, और उसको 8 दरवाजों से आवाज दी जाएगी कि वो इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए, अगर सूरत कदर के बारे में आता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, इसके बारे में आता है कि अगर वुजू करने के बाद आसमान की तरफ देख के ये सूरह पढ़ी जाती है तो उससे आंखों की बनाई जो है वो ठीक रहती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे, क्योंकि जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, ऐसी हदीस को जानते हैं, तो फिर हमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसान भी कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, पहली हदीस में हम ये देख रहे थे कि आंखों के गुनाह चले जाते हैं, हाथ के चले जाते हैं, पाँव के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि गुनाह 2 तरह के हैं। जैसे यहाँ पे जिन गुनाहों की बात हो रही है वो गुनाह जो सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह है ना, लेकिन कबीरा गुनाह जो है वो जब तक हम तौबा ना करें तो वो माफ नहीं होते। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा भी तो देखे कितनी आसान है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अहद किया कि या रब्बुल आलमीन जो गुनाह हो गए इसके बाद मैं अब ये नहीं करूंगी, तो आप मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी खूबसूरत क्या कहना चाहिए कि इनकरेजमेंट तो होती है ऐसे पढ़ के। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा तो देखे ना कि तुम्हारे दुनिया में जमीन आसमान से भरे हुए गुनाह भी लेके आओगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो सारे माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, बंदा मोमिन जब हमारी जिंदगियों में शौरी तौर पे कुरान खुलता है, एक तो वो घरानों की बात है जिनको जो बचपन से ऐसे घर में पैदा होते हैं जो दीनी घर होते हैं जिसमें बच्चे शुरू से दीन को जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जब शौरी तौर पे कुरान मेरी जिंदगी में भी खुला था तो फिर तो आंसू ही नहीं ना रुकते। फिर बंदा ये सोचता है कि मैं किस तरह से ऐसे काम करूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मना लूं, क्योंकि होता क्या कि पहले भी हम नेक काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसके साथ साथ बुराई वाली चीजें हैं, जब कुरान को हम अंडरस्टैंड करके समझ के पढ़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि ओके ये भी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या होता है कि नेकी के साथ साथ हम वो काम भी आराम से कर रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि नेकियां भी तो साथ साथ चल रही होती है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है ना, फिर सबसे खूबसूरत ये चीज होती है कि फिर वो वाला पार्ट जो होता है ना उसको हम छोड़ना शुरू होते हैं। एक एक बुराई हमारे अंदर से निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सदके जाऊं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कि इतने प्यार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को कहते हैं जो तौबा करता है कि देखो तूने गुनाह नहीं किया, ये तो शैतान ने तुझे बहकाया था, अब तूने तौबा कर लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे सारे गुनाह नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। तो यही बात जब मैं पढ़ रही थी वुजू के बारे में, तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ ये भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता कर कि हम हर नमाज में अपना वुजू कर सकें, ताकि हम ये सवाब जो है इसको हासिल कर सकें। अब दुआओं के बारे में समटाइम ये होता है कि आप लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा फलां प्रोग्राम में आपने ये दुआ पढ़ी थी तो वो आप हमें भेज दें। तो मैंने इस दफ़ा आसानी के लिए ये किया हुआ है कि आप अगर मेरा फेसबुक पेज है तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद, वहां पे अगर आप जाते हैं तो आपको सारी वुजू की जो भी दुआएं हैं मैंने उसमें डाल दी हैं। और अब से मैंने यही सोचा है कि जब भी जिस प्रोग्राम में मैं अगर कोई भी दुआ आप लोगों को बताती हूँ तो इंशाल्लाह वो मैं उस पेज में डाल दिया करूंगी, ताकि आप आसानी से उसको हासिल कर लें। और आप आसानी से, क्योंकि जब देख के याद करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अब इंशाल्लाह हम करते हैं सूरत अल-माइदा आयत नंबर 64। इससे पहले देखिए कि लास्ट टाइम हम जो पढ़े थे कि हमने सूरत माइदा में पढ़ा, लास्ट अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इससे सख्त उलमा के बारे में पूरे कुरान में कोई आया नहीं है, क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारू अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुख्त, कि क्यों नहीं रोकते उनको अहले किताब जो उलमा हैं उनके और अल्लाह वाले जो लोग हैं उनको बुरी बातें कहने से क्यों नहीं रोकते हैं। तो अब देखिए जरा, कभी हम ऐसी आयत पढ़ते हैं तो आज हम अपने आप को देखें। मैं हमेशा जो बात कहती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला का करोड़ शुक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी किताब कुरान है। अगर आज इसके बाद कुरान के बाद कोई किताब आती तो आप सोचिए हमारे बारे में क्या लिखा होता। आप देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आलिम दीन को डांट रहे हैं कि वो क्यों नहीं उनको रोकते थे। आप आलिम दीन के बारे में अब देखिए कि हम आजकल के ज़माने के आलिम दीन और आप पहले के देखिए, हम आज मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में, इमाम मालिक के बारे में बताती हूँ कि इमाम मालिक जो है ना ये 93 हिजरी में पैदा हुए थे और इमाम अबू हनीफा जो है ये 80 हिजरी में पैदा हुए थे और 13 साल इमाम मालिक जो है वो इमाम अबू हनीफा से छोटे थे। अब देखिए कि कई दफा होता है कि बास लोग जो हदीस को नहीं मानते, आजकल के बच्चे जो जैसे जितना पढ़ा लिखा बंदा होता है उतनी उनका दिमाग भी उसी तरह से होता है कि ये तो हदीसें इतने सालों के बाद लिखी गई। इसीलिए मैं उनकी आपको पैदाइश का साल भी सन बता रही हूँ। देखिए कि करबला का जो वाकया हुआ था वो कब हुआ था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 50 साल के बाद ना। तो ये कब पैदा हुए हैं? इमाम अबू हनीफा 80 हिजरी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 साल के बाद आप देखेंगे क्या था कि 50 साल के बाद तो ये 80 कितने बने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में वफात हुई ना, तो 50 साल के बाद तो देखिए उस वक्त जब इमाम अबू हनीफा थे तो सहाबा थे। ऐसा नहीं था कि सहाबा सारे के सारे उस वक्त खत्म, वफात उनकी हो गई थी। और वहां पे सहाबा भी थे, ताबईन भी थे, तो उनको हदीस मिलना कोई मुश्किल तो नहीं था ना। सिर्फ ये था कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लिखी जा रही थी, लेकिन उस वक्त उसको बुक फॉर्म में उन्होंने बनाया था। और फिर जितने असूल सख्त रखे गए, इंशाल्लाह कभी वक्त होगा तो मैं आपको उसकी भी डिटेल बताऊंगी। लेकिन इमाम अबू मालिक की आज मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताती हूँ कि इनकी बेटी फातिमा, उसका नाम आता है कि वो इमाम साहब जब इनकी बुक का नाम मौता है, सबसे पहली हदीस की किताब थी, तो ये क्या करती थी जब ये पढ़ाते थे तो ये दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनती रहती थी। और सुनते सुनते इन्होंने पूरी मौता जो है, जो बुक थी, वो पूरी इनको ज़बानी याद हो गई थी। और इतनी खूबसूरत बात जो मुझे लगी कि जब इमाम साहब अपने शागिर्द को पढ़ाते थे, उस जमाने में ये रवाज होता था कि शागिर्द जब पढ़ते थे और टीचर जो है उसकी करेक्शन करते थे। ऐसे नहीं होता था कि उस्ताद पढ़ रहे और शागिर्द सुन रहे, राइट। तो जब शागिर्द पढ़ रहे होते थे तो ये दरवाजे के पीछे होती थी, तो जहां पे वो कोई गलती करते थे ना तो अपने नाखून से टिक टिक करके आवाज ऐसे देती है। तो इमाम साहब कहते हैं कि मुझे पता लग जाता था कि यहाँ पे शागिर्द ने कोई गलती की है कि फातिमा टिक टिक कर रही है वहां पे। तो इतना उनको पूरी मौता उनको याद थी। एक वाकया है कि इनकी इमाम साहब के 900 के करीब उनके उस्ताद थे। अल्लाह अकबर, 900 उस्ताद थे। आज हमारे 5-6 उस्ताद होते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो कमाल ही कर लिया ना। अब आई थिंक लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि आगे इमाम मालिक के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में हमें क्या नसीहत की है। हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा, जिसमें हम इमाम मालिक के बारे में पढ़ रहे थे कि एक दफ़ा ईद का मौका था। नमाज पढ़ने के बाद बजाय घर जाने के इमाम साहब सीधे अपने उस्ताद इब्न शहाब ज़ुहरी के घर चले गए।
अब देखिए कि ईद का मौका है और अपने उस्ताद के घर इस नियत से गए कि क्योंकि उनके पास इतना रश होता था, इतने स्टूडेंट होते थे, तो मौका कम मिलता था। तो इमाम मालिक कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि आज उनके पास इतना रश नहीं होगा, तो मैं आज जाके उनसे हदीस सीखता हूँ। और उनके पास गए और जाके कहा कि मुझे आप हदीस सुनाइए। आप देखिए ईद का दिन है और फिर भी इमाम, उनके टीचर जो है वो उनको कहते हैं, उन्होंने 17 हदीस उनको बताई। और बताने के बाद उन्होंने कहा कि क्या फायदा कि जबकि तुम सुन रहे हो और तुम्हें याद भी नहीं रहेंगी। तो इमाम मालिक कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको सुना दूं ये सारी हदीस। उन्होंने कहा हाँ सुनाओ। तो कहते हैं उन्होंने लफ्ज ब लफ्ज वो सारी हदीस उनको सुना दी। अल्लाह अल्लाह अकबर, ऐसा उनका हाफजा था। तो कहते हैं वो इतने खुश हुए उसके बाद। और फिर एक और बात आती है इनके बारे में कि खलीफा मेहदी जो थे वो हज के दौरान में हज करने आए तो मदीना तशरीफ लाए। वहां आके उन्होंने इमाम मालिक को पैगाम भेजा कि आप आइए और मेरे बेटे, उनके 2 बेटे थे, तो उन्होंने कहा कि आप आए हमारे दरबार में आए और आके हमसे बात करें। और आके उन्होंने कहा कि मेरे बेटों को हदीस की तालीम दें। तो आपको पता है इमाम मालिक ने अब खलीफा वक्त को क्या कहा कि इल्म जो होता है वो काबिल एहतराम चीज है, आपको इसके पास आना चाहिए, ना कि मुझे आपके पास आना चाहिए। तो उन्होंने फिर अपने दोनों बेटों के इनके पास भेजा था तालीम लेने के लिए। देखिए इसके अलावा इतनी एक शख्स था वो 600 मील की मुसाफत तय करके इनके पास आया और आके उसने वो पूरे अपने जो भी कबीले थे उनके डिफरेंट उनके सवालात थे वो लेके इमाम साहब के पास आया और उसने 48 मसाइल इनसे पूछे। और कहते हैं कि 33 मसाइल में इन्होंने कहा कि ला अदरी कि मैं नहीं जानता। और जो उनके स्टूडेंट बैठे हुए थे उनमें से उन्होंने एक स्टूडेंट ने उनको कहा कि इमाम साहब आप उनको क्यों ऐसे कह रहे हैं कि लादरी, आप हर ज्यादातर तो देखे 33 मसाइल में वो ये कह रहे हैं लादरी। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये शख्स कहाँ से आया है, क्योंकि जब ये अपने शहर में, मैं इसको इस मसले का हल बता दूं क्योंकि मुझे अभी तक मैं 100% श्योर नहीं हूं इस बात के लिए, ये वापस चला जाएगा अपने कबीले में और जाके बता देगा, मैं कहाँ इसको ढूंढता फिरूंगा और मैं कहाँ इसको जाके करेक्शन करूंगा, लोग तो अमल करना शुरू हो जाएंगे और क़यामत के दिन इसका मुझे इसका वबाल आएगा। ऐसे मुख्तात होते थे लोग। आज हमसे कोई एक फतवा, क्या हमसे कोई एक बात पूछ ले, हमें तो ये लगता है कि अगर हमने नहीं बताई तो वो कहेंगे लो ये क्या कुरान पढ़ाने वाले, इनको इतनी सी भी बात का नहीं पता। इतनी बातों में वो कहते थे कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और इमाम सयूती के बारे में आता है कि वो क्या कहते कि उस वक्त का जो हुक्मरान था ना सुल्तान मोहम्मद गजनवी, उन्होंने उनको खत लिखा, इमाम सयूती को खत लिखा कि आप आए हमारे पास, हम आपको मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब में पता है क्या लिख के भेजा कि मैं अपनी खुली आंख से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता हूँ, मुझे ये डर है कि कहीं वो मेरे से ये सादत ना छिन जाए, मैं आपके को मिलने नहीं आना चाहता हूँ। देखिए ये लोग इतना डरते थे कि वक्त के जो हुक्मरान थे उनको मिलने से कि कहीं क्यों नहीं मिलते थे, इसलिए उनको ये डर होता था कि क्योंकि उनके पास वो माल दे के ये ना हो कि वो उनके मुताबिक अपने फतवा चेंज कर लें या उनके रोब में आके कोई ऐसी बात ना कह दें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं हो। इनके तकवे का ये आलम था। अब देखिए कि यहाँ पे जो उलमाए यहूद को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि क्यों नहीं रोकते उनको, तो आज के उलमा को देखिए कि अब तो हमें ये लगता है ना कि सारी बात हुकूमत पे डाल दो, हुकूमत का काम है वो ये करे वो ये ना करे, बाकी काम किसी का भी कुछ नहीं है। देखिए उनके साथ क्या था कि उनकी किताब जो थी तौरा क्या थी कि उलमा के हाथ में थी ना, बाकी लोगों के क्या था, हालांकि तौरा सबको पढ़ना कोई मना तो नहीं था, लेकिन उन्होंने तौरा को छोड़ दिया था, उलमा पढ़ते थे और अगर उनको कोई मसला होता था तो जाके उनसे पूछते थे। अब देखिए कुरान जैसे ये तो हमारे सबके हाथ में है ना, अगर कोई ऐसा मसला होता है जैसे मसला कौम विरासत का है, अगर या तलाक का होता है या कोई ऐसा वो हलाल हराम का मसला होता है कि जहाँ पे हम कभी ऐसा होता है कि मुश्किल में आ जाते हैं तो उलमाए दीन से पूछने जाते हैं। लेकिन आम चीज जो है, जो हमारी जिंदगी की जिंदगी गुजारने के असूल जो है, वो सारे के सारे नमाज रोजा हज ज़कात, हमसाये से कैसे बात, माँ बाप के हकूक, बहन भाइयों के हकूक, हर चीज तो बय्यना है कुरान में, उसके लिए तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इसीलिए उलमा की बात करें कि वो उनको सही राह क्यों नहीं बताते। और आगे यहाँ पे जो कहते हैं वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने,
यदुल्लाही मगलूला, कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, नाउजुबिल्लाह, कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बखील हो गए। तो यहाँ पे ये बात किसने कही थी? देखिए एक शख्स था यहूद का जिसने ये बात कही थी, तो क्योंकि किसी ने मना नहीं किया था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सभी को उसके अंदर लिया। और आगे जो ये आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बदुआ दे रहे हैं ना उनको, कि वो उसने कहा था कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, गुल्लत अयदियहुम, कि बंद दिए गए उनके हाथ, व लुइनु, और उन पे लानत की गई। ये जो बदुआ थी ना उनके लिए, वो एक शख्स के कॉल पे थी। देखिए उनका यहाँ पे अकीदा खराब नहीं था, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक मानते थे। उस वक्त के तो वही मुसलमान थे ना, वो अल्लाह को मानते थे। उनकी बात गलत कहने पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी बात कि अल्लाह ने कहा कि उन पे लानत भेज दी गई। अब देखिए हमारे, आप देखिए जोक्स करते हुए हमें कभी ये ख्याल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या चीज बुरी लग जाएगी? हम तो बड़े आराम से इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ करे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बिमा कालू, इस वजह से जो उन्होंने कहा था, बल यदाहू, लेकिन अल्लाह के दोनों हाथ, यदा दो हाथ को कहते हैं ना, बल्कि दोनों हाथ, मबसूततान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दोनों हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने इंसान और जिन हैं वो एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं और उनके दिल में जो ख्वाहिश है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान और हर जिन की हर ख्वाहिश पूरी करे, तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खजानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी कि जैसे एक बड़ा पूरा समंदर के अंदर आप एक छोटी सी आप सुई लेके निकाल के देखते हैं ना, तो सुई को जितना पानी लगा हुआ है, अल्लाह अकबर, इतना भी अल्लाह के खजानों में कमी नहीं आती है। और ये जो बात इन्होंने कही थी ना कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए, ये कैसे कही थी? कि मजाक कौन सा इनके, किस बात से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि ये जो कुरान में सूरत हदीद में आयत आई थी कि मन ज़ल्लज़ी यक़रिदुल्लाहु कर्दन हसना, कि कोई है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। तो इस पे इन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि लो, अब ये जो मुसलमान है ना, इनका तो जो खुदा है वो अब फकीर हो गया है, अब ये इनसे मांग रहा है कि उनको कर्ज दे दो। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह तो वो है कि जो एक नेकी का एग्जाम्पल कैसे दी थी, सूरह बकरा में हम पढ़े ना, कि एक दाने की तरह है, जैसे उसको बोया जाता है तो उससे 7 बालियां निकलती हैं, और हर बाली के ऊपर 100 दाने, 700 गुना अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ा के देता है। आप अल्लाह की राह में एक छोटी सी नेकी करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ना सिर्फ 700 गुना बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि तुम खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। सुभान अल्लाह, देखिए कहाँ हमारा खर्च करना और कहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खर्च करना, कि तुम मेरी राह में खर्च करो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं तुम पर खर्च करूंगा। और फरमाया कि अल्लाह के दोनों हाथ भरे हुए हैं, रात और दिन में हमेशा खर्च करने से उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती है। और जो रिस्क कम अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं, अल्लाह ताला बाज लोगों को जो कम रिस्क देते हैं या उन पर तंगी करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, और वो सब चीज का मालिक है, और वो जितना जिसको चाहता है रिस्क देता है। और सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर अल्लाह अपने सब बंदों पर रिस्क कुशादा कर देता तो वो जरूर जमीन पे सरकशी करते, लेकिन वो अंदाजे के मुताबिक जितना चाहता है रिस्क उतारता है, बेशक वो अपने बंदों से खूब वाकिफ है। और सूरत रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर आप किसी को भी अल्लाह ना करे रिस्क की कमी, ऐसे होता है कि कभी कोई कारोबार में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या रिस्क में थोड़ी तंगी लगती है, नमाज़े असर के बाद अगर आप एक तस्बीह करते हैं, एक तस्बीह मीन्स के 100 दफा पढ़ ले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क को बड़ा कुशादा कर देता है। और इसके अलावा देखिए कि अल्लाह आगे क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं युनफिकू, वो खर्च करता है कैफा यशा, जैसे वो चाहता है खर्च करता है, व यज़ीदन्ना, और अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा। अब देखिए ये गौर करने वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और ये उलमा यहूद के बारे में ही है कि अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा, कसीरन मिनहुम,
कसीर तादाद को उनमें से मा उनजिला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या नाजिल किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया था ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन ज्यादा कर देगा जो नाजिल किया आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपकी तरफ से, तुग़यानन व कुफ्रा, उनको सरकशी में और उनके कुफर में उनको ज्यादा कर देगा। अब देखिए कई दफा हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान से कैसे सरकशी और तुग़यानी उनको मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए हमने जब कुरान शुरू में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए है। हमने 2 प्रोग्राम पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया था ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत तो जारी और सारी है, अल्लाह की रहमत भी जारी और सारी है। ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो उस रहमत को कैसे अप्रोच करता है। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि एक माँ की मोहब्बत है। देखिए माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत जारी और सारी होती है और वो हमेशा रहती है बच्चों के लिए। इट डिपेंड ऑन द बच्चा कि वो कौन सा बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत ज्यादा लेता है और कौन कम लेता है। बाज बच्चे इजहार करने वाले होते हैं, बाज नहीं करने वाले होते। जो इजहार करने वाले होते हैं वो इतने चिपकू होते हैं कि माँ को वैसे उससे मोहब्बत ज्यादा हो जाती है। और एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, आई थिंक उससे आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फॉर एग्जाम्पल दूध है ना, दूध तो अच्छा ही होता है। अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे की पूरी खुराक होती है, वही दूध है जो कुछ बच्चों के लिए उसको एलर्जी कर देता है। अब ये दूध का तो कसूर नहीं है कि दूध खराब है या दूध अच्छा है। इट डिपेंड ऑन द हालत ऑफ द उस बच्चे की कि उसको वो दूध सूट करता है कि नहीं करता, और उसकी वजह से वो उस दूध को नहीं पी सकता क्योंकि उसके अंदर की जो खराबी है उसकी वजह से वो चीज को नहीं ले सकता। राइट? आप देखिए कितने लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है। एक चीज एक के लिए ठीक है, दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होती है। इसी तरह से ये कुरान जो है ना, ये सरासर हदायत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक एक लफ्ज पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन जिनके दिल के अंदर कजी है, जिनके दिल साफ नहीं है, उनको इससे कोई खैर नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर खैर नहीं है ना। इधर आपके अंदर अगर वो क्लियर नहीं है आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल साफ कर लो, अगर इधर कुछ गलत है ना तो वहां से वो हदायत नहीं ले सकते आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए, कुरान से हदायत लेने के लिए यहाँ सफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने नफ्स पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सब कुछ अता कर देते हैं। अब देखिए दूसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं व अलक़ैना, और डाल दी हमने बैनहुम, दरमियान उनके, अल अदावता, अदावत, वल बग़्ज़ा, और बुग़्ज़ डाल दिया कि इनके दरमियान में। एक तो ये था कि देखिए जो अहले किताब में से कौन थे, 2 ही तो थे ना, क्रिश्चियन और यहूद की बात हो रही है कि इनकी आपस में भी दुश्मनी थी। अब देखिए सूरत बुरूज में जैसे अल्लाह सुब्हानहू, उस वक़्त के तो मुसलमान यहूदी थे ना, तो यहूदियों ने ईसाइयों के साथ क्या किया था कि जो गड़ा खो दिया था और उसमें आग जलाई थी और इनको सबको आग में फेंक दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में उनका जिक्र किया था। इसके अलावा देखिए इंशाल्लाह फिर अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इनकी बुक्स एंड दावत की वजह जो है वो हमें हिस्ट्री में क्या मिलती है। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 64 सूरत अल माइदा। अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत तक ये बददुआ थी इनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ एंड अदावत डाल दी थी। अब आपको मैंने पहले भी इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई थी कि किस तरह से बुख्तनसर ने इनके साथ जब इन पे हमला किया था तो फिर क्या हुआ था, और फिर जब रोमियो के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, वो क्रिश्चियन थे ना, रोमियो के साथ लड़ाई हुई थी, तो उनका जो जनरल था जिसका टाइटस नाम था ना, उसने किस तरह से एक दिन में 1,33,000 जो यहूदी थे उसको कत्ल कर दिया गया था। और फिर कैसे इनको, और फिर हैकले सुलेमानी भी तो उसी वक्त गिरा दिया था ना, और वहां से सारों को निकाल दिया था जो ये मदीना में आके आबाद हुए थे, ये उसके बाद ही तो वहां से निकले थे। अब जब ये मदीना में आते हैं तो वहां के आबाद हुए थे, तो ये क्यों मदीना में आए थे, वजह क्या थी? क्योंकि इनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी रसूल जो है वो यहाँ पे आएंगे, इसी एरिया में आएंगे। तो जब भी इनकी किसी से लड़ाई होती थी तो ये उससे कहा करते थे कि हमारा नबी आएगा, हम उसके साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे।
और क्योंकि हमने देखा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे ये अपने बेटों को पहचानते। मानते क्यों नहीं थे? इस वजह से नहीं मानते थे क्योंकि इनमें ये बोक्स था, इनके अंदर ये था कि क्योंकि जितने नबी अभी तक आए हुए थे वो हजरत इसहाक की नस्ल में से थे ना, ये सारे के सारे नबी जो थे, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की नस्ल में से थे। तो इनको ये था कि हमारी तो दुकानदारी जो है, सारे लोग तो हमें मानते क्योंकि मदीना में जो लोग थे वो तो इनको बड़े पढ़ा लिखा समझते थे ना, और सारे पैसा भी इनके पास था, दौलतमंद भी यही थे, और इनका बड़ा एक रोब था, अगर कोई मसला होता था तो लोग जाके इनसे पूछते थे, इनके उलमा के पास जाते थे। उनको ये था कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे तो लोगों का तो सारा ध्यान उधर चला जाएगा, तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। वहां पे फिर इनका कारोबार भी ये होता था कि ये लोग असला बनाया करते थे और फिर सूदी कारोबार करते थे, उस पे सूद पे ये असला देते थे। तो इस वजह से ये क्या करते थे, ये कबाइल को आपस में लड़ाया करते थे। जब कबाइल आपस में लड़ते थे तो डेफिनेटली फिर वो इन्हीं से असला खरीदते थे, इसी तरह से इनका कारोबार चमकता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आते हैं, सबसे पहले आके इन्होंने क्या किया था, वहां पे मुआहदा कर लिया था इनके साथ कि देखो अगर कोई भी बाइस से हमला करेगा तो हम सब मिलके उसके अगेंस्ट हमला करेंगे और हम मदीना में रहते हुए हम एक दूसरे का संभालेंगे। अब क्या हुआ कि ये मुआहदा करने के बाद हर दफा मुआहदा तोड़ देते थे। अब ये कुरैश मक्का को ये कहते थे कि देखो तुम बाहर से आओ हमला करने, हम अंदर से हमला करेंगे और हम इनको खत्म कर देंगे। और एक वक्त ऐसा आया था कि मदीना से ये तीनों कबाइल को निकाल दिया गया था, और जब वहां से निकाला गया तो फिर जाके ये कहाँ पे आबाद हुए थे, खैबर में आबाद हुए थे। खैबर में इनकी आदत है, ये बड़े बड़े किले बना के रहते थे। और यहाँ पे मैं आपको खैबर की जंग की थोड़ी सी वाकया सुनाती जाऊं ताकि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम साथ साथ हिस्ट्री भी जान रहे होते हैं तो हमें और भी मजा आता है कि अच्छा आगे क्या हुआ था। जैसे हमें जानते हैं कि अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फिर क्या हुआ था, फिर ऐसे कैसे चीज़ें हुई थी। तो खैबर की जब जंग हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पे जाके लश्कर सारा बैठ गया था, वहाँ पे जाके जो खैबर के बाहर अभी बैठे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जब अनाउंस ये किया कि कल हम खैबर को फतह करेंगे। खैबर जो था ना ये किलों में था, जैसे पहला किला फतह होना था, फिर दूसरा किला, फिर तीसरा किला। तो जब सहाबा को ये खुशखबरी दी कि कल हम खैबर का पहला किला फतह करेंगे, तो उस वक़्त उन्होंने साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खैबर उस शख्स के हाथों फतह होगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। साहबा कहते हैं कि हमारे दिल में आज से पहले इतनी लालच कभी नहीं हुई कि हम में से हर कोई ये सोच रहा था कि शायद अल्लाह के रसूल जो है वो कल हमें वो झंडा पकड़े, क्योंकि झंडा देते थे ना जो भी सबसे पहले आगे जाता था। तो हजरत उमर कहते हैं कि मुझे आज से पहले इतनी लालच कभी नहीं हुई थी कि मैं सुबह उठा और मैं जाके सबसे पहले कोशिश की कि मैं जाऊं और जाके मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बैठूं। और जब मैं वहां पे गया तो लोग आए हुए थे, काफी लोग आए हुए थे, तो मैं ऊंचा ऊंचा होके बैठता था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नजर आऊं, क्योंकि बात ही इतनी बड़ी थी ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स जो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करते हैं और इसके अलावा वो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारे आ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत अली नहीं है, तो उन्होंने साहबा से पूछा कि अली कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि उनकी आंख में उनको तकलीफ है। उन्होंने कहा कि उनको बुलाए। जब हजरत अली आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लौब दहन जो है उनकी आंख पे लगाया, तो उनकी आंख ऐसे हो गई कि कभी उनको कोई तकलीफ ही नहीं थी। तो जब वो ठीक हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत अली के हाथ में पकड़ाया, और जो पहला किला फतह हुआ था वो हजरत अली के हाथ से फतह हुआ था खैबर में। यही मैं आपको सुनाना चाह रही थी। इतनी इंटरेस्टिंग जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इतना फिर ऐसे लगता है कि हम उसी जमाने में चले गए हैं। और उसी की वापसी पे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो है वो हजरत सफिया से हुई थी, और यही दौर था जो खैबर के बाद का। तो यहाँ पे अब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आगे कहते हैं कि कुल्लमा कि जब कभी कदू उन्होंने भड़काई नारा आग लिल हरबी जंग के लिए अतफाहा तो बुझा दिया अल्लाह ने, व यस औना और वो दौड़ धूप करते थे फिल अर्द जमीन में फसाद के लिए।
अब देखिए यहाँ पे फसाद का जो लफ्ज़ है कि पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये जो लफ्ज़ है, आप देखिए सेंटेंस आप गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब कभी वो जलाते थे आग फसाद की या जंग की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बुझा देते थे। आज आप देखिए, अगर अपने ऊपर ये आयत लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मोमिन बंदों पे अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए कि आप अपनी सफाई पेश ना कर सकें या किसी ऐसी मुश्किल में आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल करके देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी चीज़ को ख़त्म कर देंगे। जो आपके अगेंस्ट लोग हैं ना, ये तो दुश्मन की बात है, हम अपने घरों की बात करते हैं। अभी कभी ऐसा होता है कि बहू नई नई आती है, अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा ससुराल से वास्ता पड़ जाता है कि जो उस पर कोई ऐसी बात आ जाती है कि वो अपने आप को क्लियर ही नहीं कर पाती, कभी वो अपने खामन को साफ सफाई पेश करती है, कभी सास को करती है, अल्लाह ना करे अगर ऐसी सिचुएशन होती है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो मैं एग्जांपल देना चाह रही थी कि अगर वो सच पे है और अल्लाह पे तवक्कल करने वाली है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आग बुझा देंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो गलत फहमियाँ दूर कर देंगे। ये अल्लाह का वादे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन को कभी रुसवा नहीं करते हैं। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वयसौना फिल अर्दि फसादा, कि वो भागते हैं ज़मीन में फसाद करने के लिए। वल्लाहु, और अल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पे फसाद का लफ्ज़ देखिए कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से ये कहा था कि वो आदम अलैहिस्सलाम को एक क्रिएट करने वाले हैं, तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया था कि आप ऐसी मखलूक को क्रिएट करेंगे जो ज़मीन में फसाद करेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा था कि तुम वो नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह नहीं पसंद करते फसाद करने वालों को। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट वही बात कर देती हूँ कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कहा था आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए, तो क्या हुआ था, फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया था। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो नाम सिखाए, फरिश्तों के सामने पेश किया, उन्होंने कहा हम नहीं जानते जो आप जानते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हुक्म दिया और उन्होंने सबेना वात आना किया और सजदा कर लिया। लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया था और उसने क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा था कि मुझे मोहलत दें क़यामत तक के लिए, ताकि मैं ये वो प्रूफ ये करना चाहता था, क्योंकि उसको ये था कि मैं इतना इबादत गुजार, क्योंकि इब्लीस जो था ये फरिश्तों में उठता बैठता था, ये फरिश्ता तो नहीं था ना, ये जिन था और ये फरिश्तों में बैठता उठता था। देखिए इतना इबादत गुजार कि उसका मुकाम उसको ये दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, फरिश्तों में बैठना उठना शुरू कर दिया था। और उसमें ये गुरूर आ गया कि मैं तो बना हुआ हूँ स्मोकलेस फायर से और ये तो मिट्टी से बना हुआ है, मैं इसको सजदा कैसे करूँ। देखिए अल्लाह का एक हुक्म उसने नहीं माना था और उसकी इबादत की जरा ट्रेल देखें कि वो कितना इबादत गुजार था और उसने अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा तू मरदूद है, तू यहाँ से निकल जा। हम कितने अहकामात नहीं मानते, हम कितने अहकामात को कान से सुनने की भी कोशिश नहीं करते, हमें लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। देखिए उसने एक सजदे से इनकार किया था, जस्ट वन सजदा आदम को। एक्चुअली तो उसने अल्लाह का हुक्म से इनकार किया था ना। हम एक फजर में कितने सजदों का इनकार कर देते हैं। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह रहीम है, करीम है, इसीलिए तो हम चलते फिरते हैं। ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी टांगे तोड़ दे कि अब बिस्तर से उठ के तो देखो जरा। दुनिया के लिए तो बड़े भागते हो, जॉब के लिए तो 8-8 घंटे यूं खड़े रहते हो क्योंकि वो नजर आता है ना बाद में पेचेक मिलना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे तुम्हें नजर नहीं आते जो आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने करम करने हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मोमिन बंदों को कभी रुसवा नहीं करेंगे। हम अल्लाह का गुरूर है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब भी उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कभी रुसवा नहीं करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह कहते हैं वलाउ अन्ना, और अगर बेशक अहलल किताबी अहले किताब आमनु ईमान लाते वतकू और वो तकवा इख्तियार करते लकफरना, तो अलबत्ता जरूर दूर कर देते हम अनहुम उनसे सय्यातिहिम,
کہ हम उनसे उनकी गुनाहों को, उनकी बुराइयों को दूर कर देते। वाला अदखुलन्नहुम, तो अलबत्ता हम ज़रूर दाखिल करते, जन्नातिन नाइम, उनको नेमतों की जन्नतों में दाखिल कर देते। देखिए कितनी बड़ा इनाम है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इलाज बता रहे हैं कि वो सारी चीज़ों का बता के देखें, इनके जो उलमा थे अगर वो ऐसे कर रहे थे और लोग ऐसे करते हैं, देखो उनकी बातों की वजह से, उनके इस तरह से कहने की वजह से। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सारे गुनाह एक साइड पे कर दो। अब इलाज उसका ये है कि अगर वो ईमान ले आते। देखिए ईमान के बारे में मैंने कितनी डिटेल में बात की थी ना, कि एक ईमान वो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि अभी तो तुम जुबान से इस्लाम लाए हो, ईमान अभी तुम्हारे दिल में नहीं उतरा। कि अल्लाह करे कि हम ईमान को अपने दिल से एक्सेप्ट करें, और हमारे दिल के अंदर जो बीज है ईमान का, वो जब वो फूटता है ना बीज, तो वो फिर हमारे जवारे पे नजर आता है। यहाँ पे अहले किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर वो ईमान ले आते, किस पे ईमान लाते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते, वत्तक़ौ, और अगर वो तकवा इख्तियार करते, अल्लाह से डरते, और अगर वो ये दोनों चीज़ें करते, लकफ़रना अन्हुम सय्यातिहिम, तो हम उनसे उसकी बुराइयों को दूर कर देते, उनके गुनाहों को दूर कर देते। देखिए आज भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का यही वादा है, सबके साथ ये वादा है कि आज भी अगर हम ईमान दिल से ले आएंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर देंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको जन्नतुल फरदौस में दाखिल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करे कि हम ऐसे लोग हों। देखिए तकवे के बारे में हज़रत उमर से किसी ने पूछा था कि तकवा क्या है, इतनी खूबसूरत उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि तकवा ये है कि जैसे आप एक राहदारी में जा रहे हैं, दुनिया है जैसे, दुनिया को उन्होंने एक राहदारी के साथ तशबीह दी कि आप राहदारी में जा रहे हैं तो दोनों तरफ आपके कांटे हैं। पूरी दुनिया में आप जहां भी जा रहे हैं, पूरी दुनिया जैसे हमारा नफ्स की बुराइयां, हर चीज की पूरी तरफ कांटेदार झाड़ियां, आप उसमें से कैसे गुजरेंगे? आप अपने दामन को बचा के, अपने दुपट्टे को, अपने चादरों को, अपनी शलवार को, अपने हर चीज को बचा के उससे गुजरेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तकवा अता करे, और दुआ किया कीजिए कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरुम मिन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे इंशाल्लाह अब हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। अगली दफ़ा हम इतनी खूबसूरत आयात आती हैं, हर दफ़ा मैं ये सोचती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ना, इसमें बहुत खूबसूरत आयात थी, लेकिन अगले प्रोग्राम में लगता है कि इससे भी खूबसूरत मैसेज है। और ऑफ कोर्स कुरान का हर लफ्ज़ ही इतना खूबसूरत है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरती से हमें समझाया है कि अल्लाह करे कि उतनी ही खूबसूरती से हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। आमीन। कितना हम पढ़ते हैं, ये वाली दुआ मांगते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह के वादे पक्के और सच्चे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजून, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको चखाएंगे इस दुनिया में। हम चखते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में भी अज़ाबिल अदना, दुनिया में चखाते हैं मज़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला, और आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो बाज आ जाए, ताकि वो समझ जाए इस बात को, दुनिया की तकलीफ समझ के जब देखते हैं तो उनको ये पता लग जाए कि आखिरत की अजाब तो बहुत बड़ा है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब आजमाइश आती है ना, वो एक थप्पड़ होते हैं छोटे छोटे कि देखो संभल जाओ, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। वो बात मैंने बताई थी ना कि जब हमारे दिल में वसवसा आता है, जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो एकदम से ज़हन में फिर सवाल आता है कि अच्छा अच्छी बात है, तूने याद करा दिया, अब तो मैं दिल की हजूरी के साथ अल्लाह का जिक्र करूँगी। इसी तरह से जब आजमाइश आती है, पास आ जाए ना उसी वक्त, पलट जाए फ़ौरन, और जम जाए उस पलटने पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह आसानियाँ करेंगे। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 36 में, वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको अता दी हमने किताब, यफ़रहूना बिमा उनज़िला इलैका, वो तो खुशियाँ मनाते हैं इसलिए जो आप पर नाजिल किया गया। अभी अल्लाह अकबर 12 बज गए। बड़ी प्यारी प्यारी आयत है, मैंने ख़त्म करना था इसलिए क्या करूं। आप लोग जाग रहे हो, अगर पाकिस्तान में ज़रा मैसेज करो कि सोना है, अगली दफ़ा क्लास मुकम्मल करें कि आज कर ले।
जज़ाकल्लाह खैर, आमीन सुम्मा आमीन। है ना, लिखो ये कि क्लास आज खत्म करूं, आज, जी आज कर ले, चलो ठीक है। अच्छा जो सोएगा ना वो फिर कल देख लेना, चले आज कर लेते हैं, जल्दी से करती हूँ। इतनी प्यारी ऑनेस्टली आयात हैं कि दिल ही नहीं चाहता कि जब ऐसा होता है ना जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ कर दें, चले करते हैं। अब जिसने सोना आप सो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। चले, हाँ मेरी आज बल्कि मीटिंग भी है मेरी सारी कोऑर्डिनेटर्स के साथ, वो बच्चियां भी इंतजार करेंगी। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह सवाब देगा, देखिए इस पूरे वक्त का। चलो जल्दी से करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जिनको हमने किताब दी थी, मतलब अहले किताब। अब हमारे ज़हन में आता है कि अहले किताब को कहाँ खुशी हो रही थी कुरान पाक की, तो वो लोग जो जिनको ये पता था, क्योंकि आप देखिए मदीना में यहूदी क्यों आए थे, इसलिए उनका कोई शहर नहीं था, उनकी किताब में ये लिखा हुआ था। जब ये पिटे थे ना जंग में, तो उस वक्त इनको ये जब इनको वहाँ पे मार पड़ी थी और ये इनको निकाला गया था फ़लस्तीन से, तो इनकी किताब में ये लिखा हुआ था कि आखिरी नबी जो है वो इस एरिया में आएंगे, इसीलिए तो ये मदीना की तरफ आए थे, इनको निशानियाँ वहाँ पे मिल रही थी। और जब भी कोई जंग होती थी तो ये क्या करते थे, ये लड़ते थे, ये कहते थे कि हमारा नबी आने वाला है और जब वो आएगा तो उसके साथ मिलके हम तुम लोगों के साथ लड़ाई करेंगे और तुम्हें शिकस्त देंगे। लेकिन हुआ क्या, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में हमें बता दिया था ना कि ये यूं पहचानते थे रसूलुल्लाह को जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। फिर भी इनकार किया, क्योंकि इनके लिए ये था कि हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनकी नस्ल से सारे पैगंबर आ रहे थे जो पीछे से चलते आ रहे थे। तो इनको ये था कि अब ये हज़रत इस्माईल की नस्ल से जब रसूलुल्लाह आए थे, तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये तो ऐसा कैसे हो गया कि ये तो हमारे उसमें से हज़रत ईसा के बाद जो आना था, तो वो फिर उनमें से आते जो हमारी तरह, मतलब हमारे जो चल रही है सारे वो लिनेज जो चल रही है। तो इस वजह से, और फिर उनका तकब्बर था, और फिर ये सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया व मिनल अहज़ाबी, और कुछ करो मैं युनकिरू, जो इनकार करते हैं, बादहू, अल्लाह अकबर, इसके बाज़ हिस्सों का, बादहू को भी अंडरलाइन करें। अब देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं यहाँ पे कहा कि पूरे कुरान का इनकार करते हैं, कहा कि बाज़ हिस्सों का इनकार करते हैं। मैं और आप देखें, हम अल्लाह के अहकामात कुरान में क्या हम पूरे वो मान रहे हैं? क्या हम अल्लाह के अहकामात पूरे के पूरे ले रहे हैं? हम भी नहीं कर रहे ना, कि कुछ हिस्से को मान रहे हैं कि हाँ ठीक है ये कर लो, हाँ ये तो बड़ा मुश्किल है, अब ये तो नहीं होता ना, चलो खैर है। अब कोई चीज़ में आप देखें कि हम किस तरह से, और इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से क्यों आज पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं हर जगह पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरत अल-बकरा में, हम पढ़ चुके आयत नंबर 85 में, अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम कुरान के किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ का इनकार कर देते हो कि नहीं ये बड़ा मुश्किल है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं होना हमसे। अहले किताब को तूर पहाड़ उनके सरों पर मुअल्लक कर दिया ताकि पकड़ो इस किताब को। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं ना हुआ, इसलिए हम बड़े आराम से बैठे हुए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो ऐसा करता है ना, फमा जज़ाउ मै यफ़अल, और जो कोई बदला, मतलब जज़ा होता है कि उसका बदला क्या है, उसकी जज़ा उनको क्या है, उनकी सज़ा बेसिकली क्या है। फमा जज़ाऊ, और नहीं है बदला, मैं यफ़ल, जो ऐसा करेगा, मैं यफ़अलु ज़ालिका, जो ऐसा करता है, मिनकुम, तुम में से, इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया, कि दुनिया की ज़िंदगी में उनको खिज़युन कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई है उनके लिए, जो कुरान के किताब के कुछ हिस्से को लेते हैं और कुछ हिस्से को छोड़ देते हैं, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है। व यौमिल क़यामती, और क़यामत के दिन, युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, तो वो शदीद अज़ाब की तरफ उनको फेंक दिया जाएगा। व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, ए लोगो, अल्लाह गाफिल नहीं है जो तुम काम कर रहे हो, जो कोई अमल तुम कर रहे हो अल्लाह उसे गाफिल नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे। देखिए सूरत रात ऐसे नहीं लग रहा कि बादल गरज गरज के जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे कि कहाँ पे जा रहे हो, फ़ाइना तज़हबून, तुम कहाँ फिरे जा रहे हो, तुम्हें किस चीज़ की समझ नहीं आ रही है।
फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुल कह दीजिए इन्नमा उमिरतु, कि बेशक हुक्म दिया गया मुझे, अन आबुदुल्लाह, कि मैं अल्लाह की इबादत करूं। अब ये फिर वही बात है जो हम पहले पढ़ चुके कि पूरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि उनको तुम कह दो, और यही दाई दीन के लिए भी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करो, वला उश्रिका बिही, और नहीं मैं शरीक ठहराता उसके साथ किसी को, इलैही, तरफ उसी के, अदऊ, मैं बुला रहा हूँ, व इलैही माब, और उसी की तरफ मेरा लौट कर जाना है। और आयत नंबर 37 में वकज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबियन, और बेशक इसी तरह से नाजिल किया हमने हुक्म, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमान जो है, ये कुरान को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अरबी ज़ुबान में नाजिल किया, वला इनित्तबअता अहवाअहुम। अब अंडरलाइन करें अहवाअहुम को, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर कह किसको रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं। आप कभी गौर तो करें इन आयात पे कि उनके थ्रू हमें मैसेज मिल रहा है, लेकिन पहला अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रसूल अल्लाह से कह रहे हैं ना, वला इनित्तबअता अहवाअहुम, अगर आपने पैरवी की ना उनकी ख्वाहिशात की। हम क्या कहते हैं, नहीं जी अगर दीन नहीं है ना, हम थोड़ी उनके दीन की पैरवी कर रहे हैं, हम तो बस हमारा पहनना ओढ़ना, हमें क्या पसंद है, हमें ज़ुबान किसकी पसंद है, हमें रस्में किसकी पसंद है, हमें न्यू ईयर किसकी पसंद है, हमें हर रस्म, फिर हम क्या कहते हैं, लो ये तो रस्म है ना, ये तो मतलब इसमें तो कोई नहीं है। हमें जो हम मेहंदियाँ करते हैं, हल्दी करते हैं, वो किसकी रस्म है, क्या कर रहे हैं, गौर करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आयत को कसम से मैं कहती हूँ, आप पढ़ के ना इसको दिल पे उतारने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वाला इनित्तबअता अहवाअहुम, ए नबी अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की भी पैरवी की ना, बाद मा जाअका मिनल इल्म, इसके बाद कि आपके पास ये कुरान आ गया, आपके पास इल्म आ गया, आपको पता चल गया इस बात का, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक, तो आपके लिए फिर कोई वली नहीं है और कोई आपका बचाने वाला नहीं है। तो गौर करें जरा, अल्लाहु अकबर, वलकद अरसलना रुसुलन, और तहकीक यकीनन भेजे हमने रसूल, मिन कबलिका, नबी आपसे पहले भी हमने रसूल भेजे, वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रियतन, और उनकी बीवियां भी थी और उनकी औलाद भी थी। क्योंकि ये देखिए, आप अब यहाँ पे ये इमेजिन करें कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने नसीब वाले हैं ना, हमें शुरू से पता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक इमेजिन करते हैं हम तो उनसे उस तरह से उनसे मोहब्बत होती है। उसी तरह से हमने जैसे हम किसी को भी देखते हैं ना, तो हमें ये होता है कि वो कोई बहुत नेक है, तो हमारे जहन में क्या आता है कि वाइट से कपड़े पहने हैं, वाइट दाढ़ी रखी हुई है, बुजुर्ग हैं, तो इस तरह से उनको मतलब कोई ऐसी चीज़ हमारे जहन में एक खाका सा फौरन आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या खाका बताया है, क्योंकि हमने एक अजीब सी चीज़ बना लेते हैं कि जो दुनियादार है ही नहीं है, उसको दुनिया का नहीं पता, वो बस एक जगह पे बैठ के अपनी तस्बीह करता रहता है, और वो आंटी भी ना, बस उनको तो पता है, उनकी तो दुनिया उन्होंने छोड़ दी है, बस वो ऐसी हालत में रहती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्यों पैदा किया, हमें लोगों के लिए पैदा किया हुआ है। याद है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जब लोगों से नहीं मिलेंगे तो ये तनहौना और ये कहाँ से हम करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और हाँ, मुश्रिकीन मक्का जो थे ना, वो ये कहते थे कि ये कैसे नबी है, इनकी ये शादियाँ भी कर रहे हैं, इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद दी, औलाद इनकी फौत भी हो जाती है, अच्छा इतनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं कि अल्लाह, हमें तो ये तो ना अल्लाह का नेक बंदा तो है इतनी तकलीफ उनको कैसे पहुँच गई। तो उनके साथ तो सारा वो जंगों में जाते हैं, उनको ज़ख्म भी लगते हैं, ये तो बाजार में भी जाते हैं, कारोबार भी इन्होंने किए हैं, सारा कुछ किया, तो ये फिर कैसे नबी है। कैसे कैसे इम्तिहान होते हैं बंदे के, और शैतान कहाँ से हमला करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि आपसे पहले भी रसूल भेजे, उनकी बीवियां थी, उनकी औलादें थी, वमा काना लिरसूलिन, और नहीं था मुमकिन किसी रसूल के लिए, अय्यातिया बिआयातिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि वो कोई निशानी लेके आए खुद से अल्लाह के इज़्न के बगैर।
किसी के हाथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं रखा कि वो अपनी मर्जी से कोई निशानी ले आए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ये आपसे निशानियां मांगते हैं ना, तो इनको ये बता दो कि आज से पहले भी जितने नबी आए थे वो अल्लाह की तरफ से ही निशानियां आती थी। अल्लाह चाहेगा दिखा देगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं दिखाएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। आप देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार, उनको पता था मुशरिकीन मक्का को, वो कहते हैं ना फेस पे रब करना, वो बार बार ये कहते थे फिर ये दिखाए, फिर ये दिखा दे। सहाबा के लिए भी कितना बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इल्ला बिस्मिल्लाह लिकुल्ली अजलिन किताब के हर चीज़ की मुद्दत जो है ना वो किताब में है, लिखी हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिटा देते हैं जो वो चाहते हैं, व युथबित, और वो साबित रखते हैं, व इंदहु उम्मुल किताब, और अल्लाह के पास असल किताब है। अब यहाँ पे भी देखिए इतनी प्यारी बात है कि हमारा ये तकदीर है ना, हमारी तकदीर तो वो कहते हैं ना जब इंसान बना नहीं था, दुनिया भी नहीं बनी थी, 50,000 साल पहले कलम को काल लिख हर चीज़ की तकदीर लिख दी थी, और माँ के पेट में भी लिखी जाती है। और वो तकदीर का मैंने आपको लेवल्स भी एक दफ़ा बताए थे सारे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे हमें कितनी बड़ी तसल्ली दे रहे हैं कि अल्लाह के पास वो किताब है, किसी की इजाज़त नहीं है किसी को कि वहाँ तक वो पहुँच सके। अल्लाह जिसको चाहता है वो तकदीर में अगर कुछ ऐसा लिखे, जब हम दुआ करते हैं ना, ये उसके असर से जब कबूलियत हो जाती है, फ़यकून हो जाता है, तो अल्लाह हमारी तकदीर में से वो चीज़ को हटा भी देते हैं और अल्लाह शामिल भी कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो जो एक हदीस में मैं पढ़ रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आई डोंट रिमेंबर कि कितनी दफ़ा था, लेकिन कितनी दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर नज़र डालते हैं, और उस पर जो इंसान जैसे अल्लाह से दुआएं कर रहा होता है तो किस तरह से हमारी तकदीर बदल रही होती है। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि दुआ जो है वो तकदीर से भी आगे चली जाती है। तो बड़ी हौसले वाली ये आयत है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये आयत पढ़ के ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात किया करें कि अल्लाह आपने ही तो कहा था कि आप, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहता है उसे कायम रखता है, जिसे चाहता है मिटा देता है। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तकदीर में ये लिखा है वाक़िनी शर्रा मा कदर, या अल्लाह जो मेरी तकदीर में शर लिखा हुआ है ना, तो मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरे आने वाला दिन कैसा है, मुझे नहीं पता मेरी औलाद के आने वाला दिन कैसा है, मुझे नहीं पता कि मेरी ज़ुर्रियात के कैसे होगा। या अल्लाह अगर उनकी तकदीर में कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो या अल्लाह उसको मिटा दे और उनको नेको साहले कर दे, और आखिर में क़यामत के दिन हम सब को नूर के महबरों पे बैठा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व इम्मा नूरियन्नका, और अगर हम दिखाएं आपको बादल्लज़ी नोइदुहुम, वो जिसका हमने वादा किया था। क्या वादा किया था? कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो वो ये कहते हैं ना कि अजाब ले आओ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना कि इन पे अजाब आएगा, क्योंकि अगर ये इस तरह से करते हैं तो इनको दुनिया में भी इनके ऊपर अजाब आएगा और आखिरत में आएगा। तो फिर ये जल्दी मचाते थे, अच्छा चलो अजाब आएगा तो फिर अभी दिखा दो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर मैं अभी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं ना कि अगर मैं अभी इनको वो अजाब दिखा दूँ जो ये मांग रहे हैं, औ न तवफ़ियन्ना का, या मैं आपको फौत कर दूँ। अल्लाह अकबर। देखिए रसूलुल्लाह उस वक़्त ज़िंदा थे, आज हमें बोलने भी नहीं देते। वो कहते हैं नहीं पर्दा कर लिया, ऐसे नहीं बोलना, ये वो तो नहीं, अगर ये बोला तो चलो जिसको तो बाहर निकाल दो, ये तो उसको बोलना ही नहीं आता। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं या हम आपको फौत कर लें फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो आपके ज़िम्मे तो या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वो है जो मेरी बात को पहुँचा देना है, और व अलैना, और हमारे पास है, व अलैना हिसाब, और हिसाब लेना हमारे ज़िम्मे है। दुनिया में हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है। मत किसी को कहो कि देखा तुम्हारे साथ ऐसे होगा, तुम कब जज बन गए हो लोगों के कि तुम्हारा काम एज अ दाई दीन बता देना है। अगर वो नहीं सुनते या कुछ भी करते हैं तो आगे जाके हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेंगे। अल्लाह ने ये किसी के हाथ में, आप देखें कितनी बड़ी बड़ी आयत हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, तो हम तो कोई ज़र्रे की औकात ही कोई नहीं है ना, तो हम काहे को इतनी बड़ी बड़ी बात करें। अब आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमाते हैं अवलम यरो, क्या भला नहीं उन्होंने देखा, अन्ना नातिल अर्दा ननकुसुहा, कि हम ला रहे हैं ज़मीन को घटा कर, मतलब छोटा करके घटा कर, मिन अतराफिया, उनके तरफ से।
اب کیا تھا کہ یہ آیا جو ہے نا، یہ اگر آپ پڑھیں گے تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، اچھا زمین کیسے گھٹا رہے تھے؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے لیے زمین گھٹ رہی تھی نا، کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا آہستہ آہستہ، جب فتح مکہ ہوا تھا تو پھر ساری طرف ہی اسلام پھیل گیا تھا، تو آہستہ آہستہ ان کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ مدینہ میں جب اسلام آیا پھر اس کے اطراف میں آنا شروع ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، تو اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہو جاتا ہے جب ایک مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں آنیسٹلی وہ سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یہ میں نے اتنی دفعہ غور کیا اس بات کو کہ پہلے دعا کر لیتے ہیں نا تو قبولیت کا امید بھی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو نہیں قبول ہوتی تو اس کی ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے کہ 3 سٹیجز کیا ہیں۔ لیکن جب ہم اصرار کر لیتے ہیں نا گناہ پہ اور غلط کاموں پہ، تو پھر اگر ایک دفعہ اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے نا تو پھر کوئی نہیں ہٹتا، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آنیسٹلی یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دی ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، کہ اللہ فیصلہ کرتا ہے تو نہیں کوئی اس کو پیچھے کر سکتا اس کے فیصلے کو، اور وہ بہت جلد حساب لیتا ہے پھر۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چال چلتے ہیں وہ لوگ جو من قبلہم، ان سے پہلے بھی، کہ نبی ان سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کے بارے میں بھی انہوں نے چالیں چلی تھیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو تمام کی تمام تدبیریں جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کو کرنے دو، جو مکر کرتے ہیں، جو چالیں چل رہے ہیں نا۔ اگر کوئی دیکھیں آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے فیملی میں یا فرینڈس کے سرکل میں ایسا کرتے ہیں نا، تو پھر چھوڑ دیا کریں۔ آپ سوچیں، یہ جب چیزیں ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا کہ اللہ سے بہتر کون پلاننگ کرنے والا، کر لو جو کرنا ہے کر لو نا، نتیجہ آخر میں وہی ہونا ہے جو کن فیکون ہونا ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمو، وہ جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، پھر وہی بات کہ جو ہر نفس نے کمایا، جو عمل کیا نا دنیا میں، جو کمائی کی تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعلمو، وہ جانتا ہے ہر نفس نے کیا کمایا، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقبی الدار، کی آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَسْتَ مُرْسِلًا، کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے، جیسے آپ کو کوئی کہنا 4 دن تو ہوئے ہیں، ابھی پہلے پتہ نہیں تھا کہ کیسی اب پھر رہی تھی، اور آج آ کے ہمیں پڑھانے بیٹھ گئی ہے یا ہمیں بتانے بیٹھ گئی ہے۔ تو آپ بس یہ سوچیں کہ کل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا یہ راستے پہ چلنا قبول کیا ہے، تو میں چل رہی ہوں، میں ایسے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کر رہی ہوں، اور میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، وہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ تسلیوں پہ تسلیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم لوگوں کو دی ہیں، کہ جب تم دین کا کام کرنے جاؤ گے تو یہ چیزیں جب تمہارے سامنے ہوں گی، یہ نہیں ہوتا کہ 100% ہی سارے خلاف ہیں۔ اگر الحمدللہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی ایک دم سے شابشیں ملتی ہیں، ان کی فیملی خوش ہوتی ہے، ان کے دوست خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شرارتی ہوتے ہیں، اب شیطان کی طرف سے بھی تو حملے ہونے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو پھر ایسی آیات ہمیں تسلی دیتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو کچھ بھی اپنے پاس ہے، رکھتا ہے اپنے پاس علم الکتاب، علم کتاب، اور جو انسان کے پاس علم ہے نا کتاب کا، کوئی بھی، وہ یہودیوں میں سے تھے، نصارہ میں سے تھے، اور یا پھر کسی بھی طرح سے کسی بھی مذہب سے تھے، جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا نا، کیونکہ ہر کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کی کہ شرک نہیں کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں تھا، ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ جو نبی ہیں آپ حق ہیں، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو
اس تکلیف میں نہیں ڈالیں. آپ اپنا کام کرتے جائیں جس وجہ سے آپ کو بھیجا تھا. آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں. میں اور آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام انشاءاللہ اسی طرح سے لوگوں کو پہنچاتے رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور کرے. الحمدللہ سب الحمدللہ. آج ہماری سورت رات ختم ہوئی، بہت پیاری. اب سورت ابراہیم آگے آ رہی ہے، وہ اور بھی پیاری ہے. آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دلوں کا سکون جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں ہی رکھا ہے، اللہ کے کلام میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہے. وہی بات ہے کہ جب ہمیں یہ وہ کہتے ہیں نا چسکا لگ جاتا ہے تو پھر ہر وقت انسان یہی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بلکہ میں ابھی لاسٹ ویک میں ایک پارٹی میں تھی تو میں ان کو بتا رہی تھی کسی کو، انہوں نے کہا کہ میں نماز سے پڑھتی ہوں تو کیونکہ وہ سجدہ نہیں کر سکتی تھی نا، تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ آپ جب سنت پڑھتے ہو، کیونکہ فرض میں تو ہم ریگولر اپنی نماز جیسے پڑھنا ہوتا ہے ویسے پڑھتے ہیں، لیکن نفل سنت میں قرآن کھول سکتے ہیں نا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اس میں آپ اپنا سپارہ رکھا کریں اور آپ اندازے سے آپ رکھ لیں کہ آپ نے ایک رکوع فار ایگزامپل ایک قیام میں پڑھنا ہے. تو اس طرح سے آپ نماز کی حالت میں آپ قرآن شریف پڑھنا شروع ہو جاؤ گے تو بہت مزہ آتا ہے. And she was very much excited. تو میں نے کہا بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو، کیونکہ وہ تو چلتے پھرتے میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ نہیں، نماز میں اگر تم سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم نماز بیٹھ کے پڑھو، پوری مطلب قیام نہیں کرو. تو I said آپ کو اللہ نے جب قیام کا اذن دیا ہے، اللہ نے آپ کو قیام کی نعمت عطا کی ہے، تو وہ کیوں آپ چھوڑتے ہو؟ تو قیام بھی کر سکتے ہو، آپ رکوع بھی تو کر سکتے ہو، تو پھر آپ سجود میں صرف آپ بیٹھو. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے نہیں پتا تھا، میں کتنے سالوں سے ایسے ہی کر رہی تھی. تو کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو پھر ان کو جب میں نے یہ بتایا، میں نے کہا ساتھ آپ اپنی چھوٹی سی ایک ٹیبل رکھ لیں، اس کے اوپر آپ قرآن پاک اپنا سپارہ رکھ لیں، کیونکہ قرآن تو بڑا ہوتا ہے نا، اٹھانا مشکل ہوتا ہے. بڑے بڑے لفظوں والا آپ رکھ لیں اور ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں. تو اتنا مزہ آتا ہے آنیسٹلی کہ آپ نماز کی حالت میں، کیونکہ صبح کا قرآن تو، فجر کا قرآن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا نا کہ پیش ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. تو اور بھی اچھا لگتا ہے کہ جب آپ تہجد میں یا آپ فجر میں اٹھتے ہیں تو آپ اپنی نفل میں، اپنی سنت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں. تو یہ بڑا خوبصورت سفر ہے جی. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بنا لیتے ہیں نا، باقی سارے رشتے خوبصورت ہو جاتے ہیں. پرابلم وہاں ہوتا ہے کہ جب ہم نے ابھی پرائرٹی نہیں بنایا ہوتا، کبھی ہمارے بچے، کبھی ہمارا کاروبار، کبھی ہمارے خاوند، کبھی ماں باپ، ہم نے ان کو پرائرٹی لسٹ پہ رکھا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بعد کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ہی رکھا ہوتا ہے. تو وہ لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں جنہوں نے ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میری پرائرٹی میرا اللہ ہے، اس کے ساتھ میں نے ہر رشتے کو نبھانا ہے، اور رشتے اتنے خوبصورت نبھیں گے تو اسی وقت اللہ قبولیت انشاءاللہ کر لیں گے. تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سورۃ ابراہیم میں نیکسٹ ٹائم جب ہم کریں گے تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ایک ایک لفظ کو سمجھ سکیں. اور وہ دعا بھی ضرور یاد کر لے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، تو اور بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے لو ونس جو ہیں، فار ایگزامپل ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے ہمسائے میں سے، تو ہمیں نہیں پتہ لگتا نا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. تو پھر رسول اللہ نے اسی لیے اتنی پیاری دعا سکھائی ہمیں کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں برے ہمسائے سے، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب. دیکھیں اگر خامند یہ دعا پڑھتے ہے تو وہ بیوی کے لیے ہے، اور اگر بیوی پڑھتی ہے تو وہ خامند کے لیے ہے، کیونکہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے کہ ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، وَمِن وَالَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، ایسے دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے رہیں. کس بات سے نگرانی کرے؟ اِرْعَا حَسَنَةً دَفَنَهَا، اگر کوئی مجھ میں اچھائی دیکھے تو اسے اپنے پاس رکھے. اِرْعَا سَیِّئَةٍ، اور اگر مجھ میں کوئی برائی دیکھے،
अदाहा, तो उसका चर्चा कर दें। अल्लाह अकबर। इतनी प्यारी दुआ है कि आप इसका एक एक देखिए, हर रिश्ते को इसमें बयान किया कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हर रिश्ते के शर से महफूज रखे। इसको याद कर लें। अगर आपको अरबी में याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, आप इसको उर्दू में याद कर लें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात इतने जामे कलमात हैं कि हम अपनी जुबान में अपनी अकल से अगर मांगने शुरू करेंगे तो हमारे पास इतनी लंबी स्टोरी बन जाती है। लेकिन आप देखिए कि इसमें कितनी खूबसूरती से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रिश्ते के बारे में कि उसके अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके फितने से हमें महफूज रखे। बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगते रहें और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं कबूल करते रहें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपनी रहमतें नाजिल करे। सुबह शाम की दुआएं पढ़ के ज़रूर फूंक दिया करे, घर में भी, एवरीवेयर। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह सब जगह पे खैर व खैरियत रखेगा। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।